جی ہادی علی، کیا ہے آج کا آپ کا سوال؟ حضور احمد پور شرقیہ کے مجلس ختم نبوت کے صدر مولوی ابو البشیر عرفانی نے ایک پمفلٹ مرتب کیا ہے جسے مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان نے شائع کیا ہے۔ اس پمفلٹ کا نام انہوں نے الہامی گرگٹ رکھا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ کسی ایک دعویٰ پر انہیں یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قرار نہیں، اس لیے ہم نے اس رسالہ کا نام الہامی گرگٹ رکھا ہے۔ جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے، ایسے ہی مرزا صاحب نے دعوی بدلے ہیں۔ مولوی ابو البشیر عرفانی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کئی مرتبی اور صفاتی ناموں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو کبھی کچھ قرار دیتے تھے، کبھی کچھ قرار دیتے تھے، اس لیے وہ لازماً جھوٹے تھے۔ اس پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ سنایا گیا ہے، ورنہ وہ زبان جو جناب مولوی صاحب نے استعمال فرمائی ہے بہت ہی گندی اور غلیظ اور بازاری زبان ہے، اور وہی طرز ہے۔ اور سر وقت پر ایک گرگٹ کی تصویر بھی بنائی ہوئی ہے، وہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ حالت تھی۔ بات یہ ہے کہ جو گرگٹی لوگ ہیں، جن کی بچپن سے بڑھاپے تک گرگٹ دیکھتے عمر گزر گئی، ان کو کیا پتہ کہ رنگ کیا ہوتے ہیں اور رنگ بدلنا کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنا تعارف یوں فرماتا ہے، کل یوم هو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہر آن وہ اپنے رنگ بدل رہا ہے، ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس اب تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی تکفیر کرو گے، کن کا انکار کرو گے۔ پھر رنگ ہی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبغۃ اللہ ہے ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ اللہ کا بھی رنگ ہے، اس کو بھی دیکھو، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اسی رنگ کو اپناؤ۔ بس جو لوگ اللہ کے رنگ اپناتے ہیں ان کی تو شانیں بدلتی ہیں، وہ کبھی کسی شان سے ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کسی شان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی مضمون کو میر درد نے یوں بیان کیا کہ دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، اے میرے رب دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے۔ جسے تو شانے بدلتا ہے، ہم بھی شانے بدلتے ہیں تیرے ساتھ ساتھ۔ تو ان صاحب کو یہ خیال نہیں آیا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کا تمسخر آخر کہاں تک پہنچے گا، کون کون ان کے تمسخر کی زد میں آ سکتا ہے، اگر وہ آ سکتا تو کون ہے جو خدا پر تمسخر کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کتنے مختلف بیان فرمائے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ ان مولویوں کو کیا گرگٹ دکھائی دے رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی عالم الغیبہ، کبھی عالم الشہادہ، کیا کیا رنگ بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ان بازاری لوگوں کی باتوں سے وہ پاک ہے، بہت بلند ہے، اس تک کوئی تانا نہیں پہنچتا۔ وہ یہی ہے جو مختلف شانوں کے ساتھ ہمہ وقت کائنات پر ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن ان پیاروں پر جو ان رنگوں کو پہچانتے ہیں، ان بد نصیبوں پر نہیں جن کی آنکھیں رنگوں کی پہچان سے اندھی ہو گئی ہوں۔ پھر فرماتا ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ خالق بھی ہے، وہ سب سے پہلے پیدا کرنے والا بھی ہے، اور کیسی خوبصورت تصویریں کھینچنے والا ہے۔ ساری کائنات تصویروں سے بھر گئی ہے، اور کیسی کیسی خوبصورت تصویریں اس کائنات میں دیکھنے والوں کو دکھائی دیتی ہیں، سوائے ان کے جن کو گرگٹ کے سوا خدا کی مخلوق میں کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، بس گرگٹ پہ نظر مرکوز ہے، اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی،
کہ چند نام ہیں، اس کے تو سب خوبصورت نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت ہی بزرگی والا غالب ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ ہی کے رنگ پکڑے. اور آپ نظر ڈال کر دیکھیں تمام انبیاء کے متعلق جو جو ان کی صفات ہمارے لیے ان کی کتب میں محفوظ کی گئی ہیں، جو کچھ صفاتی نام ان کو عطا کیے گئے ہیں، وہ سب ایک طرف، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف نام، مختلف رنگ، مختلف صورتیں ایک طرف، اور یہ پلڑا پھر بھی بھاری رہتا ہے. آپ احمد ہیں، آپ محمد ہیں، آپ یاسین ہیں، آپ طٰہٰ ہیں، آپ مزمل ہیں، آپ مدثر ہیں، آپ نبی امی ہیں، آپ داعی اللہ ہیں، آپ سراج منیر ہیں، آپ منذر ہیں، آپ ہادی ہیں، آپ شاہد ہیں، آپ شہید ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ مزکی ہیں، آپ معلم کتاب ہیں اور حکمت پڑھانے والے بھی ہیں. آپ نور ہیں، آپ برہان ہیں، آپ ذکر ہیں، آپ سراپا ہدایت ہیں، آپ رحمت للمومنین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ امت کے لیے حریص ہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ نگران ہیں، آپ صاحب خلق عظیم ہیں، آپ اول المسلمین ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ عبداللہ ہیں، آپ صاحب کوثر ہیں، آپ محیی ہیں، آپ صاحب اسراء ہیں، آپ صاحب قاب قوسین ہیں. خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف جن ناموں سے کرایا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. یہ وہ سب نام ہیں جو قرآن نے آپ کو دیے ہیں. الہامی رنگ جو آپ میں خدا کی طرف سے ودیت ہوئے، یہ ان رنگوں کا ذکر ہے. بدنصیب زبانیں دیکھیں کیسی کوہتاں ہیں، حقیقت کو پا نہیں سکیں اور زمین چاٹ رہی ہیں. آپ ماہی ہیں، آپ حاشر ہیں، آپ عاقب ہیں، آپ المقفع ہیں، آپ نبی الرحمہ ہیں، آپ نبی التوبہ ہیں، آپ الملہمہ ہیں، آپ سید بلد آدم ہیں، آپ شفیع ہیں، آپ وسیلہ ہیں. وسیلہ تو قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے آپ کو. آپ اکرم الاولین والآخرین ہیں، آپ آخر الانبیاء ہیں، آپ محل ہیں، آپ محرم ہیں. بس یہ جو کثرت ہے رنگوں کی اور مختلف حیثیتوں کی، یہ حسن میں اضافہ کرنے والی ہے، نہ کہ ان اشرف المخلوق کو مخلوقات میں سے ادنا درجے کی مخلوق کے مشابہ کرنے والی ہے. یہ اللہ کی شان ہے، اسی کے رنگ بندے اختیار کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے رنگ اختیار کیے، اور حسب حال آپ کا ایک الگ رنگ ظاہر ہوا کرتا تھا. جب خدا کا ذکر بیان فرماتے کرتے تھے عجیب ایک خاص رنگ آپ کے چہرے پر آتا تھا، سارا وجود اللہ کی محبت میں پگھل جاتا تھا. جب خدا کی عظمت اور اس کی بزرگی بیان فرماتے تھے تو دل پر ایسا روب طاری ہو جاتا تھا کہ وجود لرزنے لگتا تھا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ممبر کانپنے لگتا تھا جس ممبر پر کھڑے ہوتے تھے، اور بعض دفعہ ہم ڈرتے تھے کہ کہیں ممبر نہ ٹوٹ جائے اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ایک یہ بھی رنگ تھا. ایک وہ رنگ تھا کہ سجدوں میں گر کر اس طرح روتے تھے، اس طرح اللہ کے ذکر میں دل پگھلتا کہ آنکھوں کے رستے بہتا تھا. اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ سینے سے ایسے آواز اٹھتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی. یہ بدلتے ہوئے رنگ کیا ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
مختلف شانیں ہیں جو مختلف کیفیات کے مطابق آپ پر ظاہر ہوئیں. کبھی خدا کی ہستی کے خلاف کوئی ناپاک کلمہ سنتے تو طبیعت میں ایک غیر معمولی غیرت جوش مارتی تھی، غیر معمولی کیفیت پیدا ہوتی تھی جس کی کوئی مثال دوسری جگہ دکھائی نہیں دیتی. جنگ احد کا موقع تھا جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور نڈھال اور آپ کے صحابہ بھی اسی کیفیت میں ایک غار میں پناہ گزین ہوئے. اس وقت یہ حالت تھی کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اونگ کے ذریعے ان کو سکینت بخشی. اونگ چھا گئی ان کے اوپر. تھکے ہوئے بندوں پر اللہ کی رحمت اس طرح نیند کی صورت میں، اونگ کی صورت میں آ رہی تھی. اس وقت دشمن تعلیق کر رہا تھا. ایک پہاڑ کی چوٹی سے بڑی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ محمد کہاں ہے، عمر کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. صحابہ غیرت میں آ کر جواب دینا چاہتے تھے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے روک رہے تھے کہ نہیں نہیں، کوئی جواب نہ دو. مگر جب انہوں نے نعرہ لگایا اولو حبل اولو حبل، ابل حبل خدا بلند ہو، اس کا نام بلند ہو، تو صحابہ خاموش رہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ پکار اٹھے، اب کیوں جواب کیوں نہیں دیتے، جواب کیوں نہیں دیتے. انہوں نے عرض کیا خدا یا رسول اللہ کیا جواب دیں. فرمایا اللہ اکبر، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ عز و اجل، یا اعلیٰ و اجل، اعلیٰ و اجل. یہ کہو اللہ ہی سب سے اعلیٰ ہے اور وہی سب سے زیادہ روشن ہے. کوئی پرواہ نہیں کی اس وقت جان کی، کسی اور خطرے کے، ہر اور خطرے کا تصور دل سے نکال باہر پھینکا. اللہ کی غیرت میں ایک یہ بھی رنگ تھا. عز انکساری کے رنگ ہیں، غیرت کے اور جلال کے رنگ ہیں. یہ سارے رنگ ان مولانوں کو کیا دکھائی دیتے ہیں. چنانچہ تفسیر الخازن میں لکھا ہے کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى و فضلہ. جس شخص کو اللہ کی طرف سے کثیر تعداد میں نام عطا ہوں، یہ اس شخص کی شرف اور اس کی عظمت کی دلیل ہے، اس کے فضل کی دلیل ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہی نور ہے جو در حقیقت سب کے لیے اپنانے کے لائق ہے، اور وہی برکت پاتے ہیں جو اس نور سے حصہ پاتے ہیں. فرماتے ہیں سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں. نور ایک ہے لیکن مختلف رنگوں سے بنا ہوا نور ہے. فرمایا یہی نور ہے جو سب کو دیا گیا، سب غلاموں کو دیا گیا، مگر حسب مراتب جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگوں سے حصہ پایا، اسی قدر وہ نور کا علم بردار ہوا. اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر، اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی، صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صادق مصدوق یا صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی. روحانی خزائن جلد 5 آئینہ کمالات اسلام. اب یہ وہ رنگ پانے والے تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ کے وسیلے سے خدا کے رنگ پائے ہیں، اور ان معنوں میں آپ وسیلہ ہیں. اور اسی مضمون کو مختلف امتوں کے بزرگ اور اولیاء اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور جاہل علماء نے اس وقت بھی ان پر کفر کے فتوے دیے تھے. کئی ایسے اعلان کرنے والوں کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، کیونکہ ان کی اندھی آنکھیں گرگٹ سے آگے نہیں جاتی، اس وہاں تک مرکوز ہو جاتی. ایسا پیارا لگتا ہے گرگٹ رنگ بدلتا ہوا کہ اوپر نظر ہی نہیں اٹھتی. اور بھی کائنات ہے، سارا جو بھرا ہوا ہے خدا کے حسن کے ساتھ، اس کے مختلف رنگوں کے ساتھ، وہ گرگٹ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی شیخ الاکبر کہلاتے تھے. اتنا بلند مقام ہے آپ کا علماء امت میں.
सुन ही लीजिए अब उलमा इकराम आप क्या कहते हैं। अनल कुरानो वस्सबुल मसानी व रूह है ला रूहल अवानी, कि मैं कुरान करीम हूँ, मैं सूरह फातिहा हूँ, वो 7 आयात हूँ जो बार बार तिलावत की जाती हैं, और रूह अर्रूह की रूह, अर्रूह से मुराद जिब्राइल होता है, मैं रूह अर्रूह की रूह हूँ, ला रूहुल अवानी, मैं ज़माने की आवाज़ नहीं हूँ, मैं इब्नुल वक्त नहीं हूँ, मैं तो कुद्सियों की रूह हूँ। अवानी तो ऐसे जमा है बर्तन की असल में, तो ज़माना भी ज़र्फ़ है ना, इसलिए मैंने ज़माने की रूह बयान किया है। इसमें मकान भी आ जाता है और ज़मान भी आ जाता है। तो वो बर्तन जिसमें हम रह रहे हैं, मैं उसकी आवाज़ नहीं हूँ, मैं तो कुद्स की रूह हूँ और रूहुल अमीन की रूह हूँ। फिर एक बहुत मशहूर बुज़ुर्ग सूफ़ी गुज़रे हैं, शमसुद्दीन तबरेज़, जिनके उर्स मनाए जाते हैं, उनके याद में क़वालियाँ की जाती हैं और बहुत बड़ा मर्तबा है इनका सूफिया में। वो पता है क्या कहते हैं, मैं कौन कौन हूँ? अब ज़रा दिल थाम के बैठें, उनकी बारी आ रही है। हम नूह हो हम आदम, हम नूह हो हम आदम तोई, हम ईसा मरियम तोई, हम राज हो हम महरम तोई, चीज़े बदे दरवेश राह। ए मेरे महबूब, जिसको भी मुखातब कर रहे हैं, नूह भी तू है, आदम भी तू है, और ईसा मरियम भी तू ही है, हम राज भी तू है और हम महरम भी तू है, चीज़ें बदे दरवेश रा, इस दरवेश की झोली में कुछ डाल दे, इसके किशकोल में कुछ डाल दे। हज़रत शम्स तबरेज़ का दीवान सफ़ा 6, मतबा नामी लिखा हो, पता नहीं क्या मतलब है, मतबा मुंशी नवल किशोर नाम था गालिब उनका, हाँ नवल किशोर लिखना वो। अब सुनिए हज़रत बायज़ीद बुस्तामी क्या फरमाते हैं, और अब तो वाकई जिगर सामने का वक्त आ गया है। पूछा अर्श क्या है, कहा मैं हूँ। पूछा कुर्सी क्या है, कहा मैं हूँ। पूछा लौह कलम क्या है, कहा मैं हूँ। क्यों गिरगिटी मौलवियों को समझ आई है क्या कहा जा रहा है? लौह कलम क्या है, मैं हूँ। पूछा खुदा अज़्ज़ा व जल के बंदे हैं इब्राहीम, मूसा, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहा वो सब मैं हूँ, मुझी में है सब। पूछा कहते हैं खुदा अज़्ज़ा व जल के बंदे हैं जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, इजराईल अलैहिस्सलाम, कहा वो सब मैं हूँ। छुट्टी हुई। तज़किरतुल औलिया बड़ी मशहूर किताब है ये, तो वहाँ मौलवी सीने से लगाए फिरते हैं सिर्फ खुतबों में से इनमें से कुछ पढ़ के सुनाने के लिए, वरना खाक नहीं पता चलता कि इसमें लिखा क्या है। वही बातें जो लिखी हैं वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उससे मिलती जुलती बाज़ बातें, वैसी नहीं, बल्कि ज़्यादा तशरीह के साथ और बता कर कि मेरी क्या मुराद है। वो जब फरमाते हैं तो ये तबर लेकर दौड़ते हैं, चाहते हैं कि शाख को काट दें, चाहते हैं कि आपको वजूद मिटा दिया जाए। लेकिन इसी तज़किरा औलिया में जो बगलों में दबाए फिरते हैं, जिससे जुमे तैयार करते हैं, अपने जुमों के खुतबे तैयार करते हैं, उनमें ये लिखा हुआ है कि पूछा खुदा अज़्ज़ा व जल के बंदे हैं जिब्राईल, मीकाईल, इसराईल, इजराईल अलैहिस्सलाम, कहा वो सब मैं हूँ। तज़किरतुल औलिया उर्दू बाब 14 सफ़ा 128, शाया करदा शेख बरकत अली एंड सन्स। अब हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को सुन लीजिए। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये सब देवबंदी जिनमें ये सारे शामिल हैं, अरारी मौलवी, ये उनके पीर मुर्शद हैं सबके, हमारे भी पीर मुर्शद।
लेकिन हम उनका इरफान रखते हैं। जो एहतराम हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का एक आरिफ बिल्ला रखता है, वैसा इन मजमाबाजों को तो नसीब हो ही नहीं सकता। सुनिए क्या कहते हैं, क्यों इस पर कभी एतराज़ नहीं उठा, क्यों गिरगिट याद नहीं आया। कहते हैं तालीम अस्माए मरदुम रा मन बूदम वांच बरनूह तूफ़ान शुद व सबब नुसरत ऊ शुद मन बूदम आँच इब्राहीम रा गुलजार गश्त मन बूदम तौरेत मूसा मन बूदम एहयाए ईसा मैयत रा मन बूदम कुरान मुस्तफ़ा मन बूदम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अत्तफ़ीमातुल इलाहिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 18 तबा मदनिया बरक़ी प्रेस। बिजनौर है लफ्ज़, यहाँ बिजनौर ही है ना। तर्जमा तालीम अस्माए मरदुम रा मनबूदम, वो जो आदम को तालीम दी गई थी अस्मा की, जिसमें कुछ मर्दान खुदा के कुछ रिजाल के नाम सिखाए गए थे। कहते वो मैं ही था, मेरा ही नाम था असल में। और नूह के वक्त जो नुसरत आई थी वो भी मैं ही था, जिसने नूह और उसके साथियों को उस सैलाब से बचाया और निजात बख्शी, मैं था। इब्राहीम पर जब आग गुलजार हुई तो मैं था। मैं ही मूसा की तौरात था, मैं ही ईसा का एहयाए मौता था, और मैं ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान था। अब बताइए कहाँ जाएंगे ये लोग? इल्म रखते हैं, बदयानत है। कौन कह सकता है कि इस मौलवी साहब ने जो अल्लामा कहलाते हैं ये तज़किरतुल औलिया नहीं पढ़ी होगी? सब कुछ दिखाई देता है, मगर अपनी मर्ज़ी की बातें जिसके खिलाफ उछालनी हो उसे उछाल देते हैं, और जहाँ हाथ रखना हो हाथ रख के बैठ जाते हैं, और ये नहीं जानते कि इसकी सज़ा दिलों का पत्थर हो जाना है, और फिर पत्थर दिलों से कुछ नसीब नहीं होगा। ये है हाल हमारे उलमा का, जो आजकल हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ताल्ली से काम लेते हैं और जुल्म करते हैं और बाज़ारों में मजमे लगाते हैं और नफ़रत के बीज बोते हैं और अहमदियों के ख़िलाफ़ हंगामा आराई करते हैं। इस किस्म के चीथड़े मैंने देखा है। गलियों में लड़के लिए फिरते हैं, कुछ मदरसों के लड़के, और अहमदियों के ऊपर उनकी ज़िंदगी हराम हो जाती है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को स्कूलों में इस किस्म की चीज़ें दिखाकर गालियाँ दी जाती हैं, उनके बस्ते छीन लिए जाते, उनकी कापियों पे स्याहियाँ गिर जाती हैं। ऐसी माओं ने मुझे लिखा कि इस किस्म का लिटरेचर पढ़ के स्कूलों में ऐसी नफ़रत की आग भड़काई गई है कि बाज़ दफ़ा मेरा बच्चा रोता हुआ घर आता है, कहता मैं अब स्कूल में नहीं जाऊँगा। वहाँ मसीह मौत को गंदी गालियाँ देते हैं, बेहुदा लग़व बातें करते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और फिर मुझे उस पर मारते भी हैं। जिस कौम के दिल ऐसे सख्त और ज़ालिम हो गए हों कि छोटे छोटे बच्चों पर वो इस तरह अपनी तबीयत के बुग़्ज़ उछालते हों और खुदा का खौफ न रखते हों, जानते हों कि जिस शख्स ने जो कुछ कहा है वो किस वजह से कहा है और क्यों कहा है, और इससे पहले बुज़ुर्गों ने बहुत ज़्यादा उसी मज़मून की बातें की हैं, लेकिन महज बुग़्ज़ की खातिर, महज इनाद के लिए इनका जुल्म हर कसो नाकस पर चलता है, औरतों पर चलता है, बूढ़ों पर, मर्दों पर, बच्चों पर, और ये गंद फैलाते चले जाते हैं और हमें जवाब देने की इजाज़त नहीं है। कहा जाता है तुम इसका जवाब न दो, इश्तियाल अंगेज़ी होगी। ये क्या है जो तुम चीथड़े फैलाए फिरते हो? ये क्या चीज़ है? इश्तियाल अंगेज़ी नहीं है। हमारे जवाब से तो आग बुझेगी। ये तो वही मज़मून है जो फैज़ ने कहा था कि संग व खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। अच्छी अमन की तलाश है कि काटने वालों को तो खुला छोड़ दो और उनको इलाज जो पत्थर हैं उनको बंद कर दो, उनको बांध दो। लेकिन यहाँ तो पत्थर की इजाज़त नहीं, फूलों की इजाज़त मांगते हैं।
हम तो इन्हें कुछ नहीं कहते, हम तो इन्हें इंसान ही कहते हैं, मगर हम चाहते हैं जवाब दें, हम बताएं बनी नौ इंसान को कि ये किस किस्म के इंसान बने हुए हैं। इंसान तो हैं मगर ऐसे इंसान पहले भी गुजरे हैं, पहले भी मासूमों पर इस तरह जुल्म किया करते थे, पहले भी उनकी बातें अपने मवाज़े से हटाकर तहरीफ करके बयान किया करते थे। बस हमारी बात भी सुनो और सुनो कि हम क्या कहते हैं। मुझे याद है जब जिन दिनों में ज़िया साहब के ज़माने में ये फ़ैसले हो चुके थे कि जमात के ख़िलाफ़ एक ऑर्डिनेंस जारी होगा, उसकी फ़िज़ा में एक भिनक सी थी और एक गूंज सी नज़र आ रही थी कि कुछ होने वाला है। उस वक्त मैंने बहुत जल्दी से उलमा की मदद से कुछ उनको समझाया कि किन खतूत पर लिखना चाहिए, और एक हमारे मुजीबुर रहमान साहब से कहा था वो भी लिखें। तो इनकी कोशिशों को जोड़कर कुछ चीज़ें चुनकर कुछ को मुख्तलिफ रंग देकर एक किताबचा तहरीर किया था जिसका नाम था एक हरफ नासिहाना। ज़्यादातर तो इन्हीं उलमा की काबिश थी, मगर उसको आखिरी शक्ल मैंने ख़ुद दी, उसे तकसीम कराया। उससे इतना शदीद रद्द अमल हुआ उलमा में और हुकूमत में कि हम हैरान रह गए। उसमें यह नहीं था कि तुम गंदे हो नौज़ बिल्लाह में ज़ालिक, और तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। उस रिसाले में यह था कि खुदा के लिए हम पर झूठे इल्ज़ाम न लगाओ, हम ये नहीं हैं, ये हैं, जो तुम कहते हो वो नहीं हैं। हज़रत मसीह इस्लाम के हवाले थे कि आपको कुरान से कैसी मोहब्बत थी, अल्लाह और रसूल से कैसी मोहब्बत थी, आपके अशार आपकी नसर के नमूने पेश किए गए थे, और उसके नतीजे में ऐसा रद्द अमल दिखाया हुकूमत ने, क्योंकि वो जानते थे कि हमारी स्कीम पर इसका बद असर पड़ेगा। वो फैसले जो हम कर बैठे हैं, आवाम कहेंगे कि इनके ख़िलाफ़ फैसले कर रहे हो, इनकी बात तो सुनो क्या कह रहे हैं। बिजली की तरह सूरत के साथ सारे मुल्क में वो रिसाले ज़ब्त कर दिए गए, और जिन्होंने तकसीम किए उनको उलमा की टोलियाँ घसीटती हुई अदालतों में ले गईं, थानों में पहुँचाया गया, मारा गया, हर तरह से उन पर मज़ालिम किए गए। बाद लोग सालों उस मुकदमे में मुब्तला रहे, अभी भी शायद कुछ बाकी हों उनके जिनके मुताबिक अभी फ़ैसला नहीं हुआ। हर रोज़ अदालत के फेरे, हर महीने, हर 2 महीने, 6 महीने बाद, बाज़ों के साल के बाद, लेकिन एक तलवार है जो लटकी हुई है, और अदालतों में जो हमारे हो रहा है वो आप सब जानते ही हैं कि क्या हालत है। तो बड़े बड़े शरीफ लोग इस तरह इस मुसीबत में मुब्तला हुए। क्यों? इसलिए कि वो कहते थे हमें फूल फेंकने की इजाज़त दो, हम पानी लाए हैं इस आग को ठंडा करने के लिए। और हुकूमत पाकिस्तान से पूछो तो कहते हैं हम इसलिए तुम्हारी किताबें शाया होने की इजाज़त नहीं देते कि इश्तियाल अंगेज़ी होगी। अजीब मंतक है। वो जो हिस्सा इश्तियाल अंगेज़ी के काबिल आप लोग समझते हैं, उसको वहाँ से निकाल कर जिसके इर्द गिर्द उसकी तशरीह मौजूद है, जिसको तशरीह के साथ पढ़ा जाए तो कोई इश्तियाल अंगेज़ी हो ही नहीं सकती, उस हिस्से को सारे मुल्क में मुख्तलिफ इश्तियाल अंगेज़ी के रंग पहनाकर शाया करने की इजाज़त है, खुली छुट्टी है। अखबारों में, रिसालों में, चीथड़ों में, जगह जगह वो किस्से जो आग लगाने वाले किस्से हैं इनके नज़दीक वो फैलाए जा रहे हैं। और वो इबारतें जिनमें वो एक छोटा सा टुकड़ा जड़ा हुआ है, जिनको पढ़ने के बाद हर शरीफ नफ्स इंसान जान लेता है कि इसका क्या मतलब है, उसे तय शा ही नहीं सकता। उन इबारतों को शाया करने की इजाज़त नहीं। जिससे इश्तियाल अंगेज़ी होती है उसकी इजाज़त, जिससे इश्तियाल बुझते हैं उसको दबा दिया गया, और दुनिया को कह रहे हैं कि देखो ना हम इसलिए नहीं शाया होने देते, पता है आपको इन किताबों को शाया कर दिया तो मुल्क में आग लग जाएगी। 100 साल से शाया शुदा हैं, आग नहीं लगाती, आग बुझाती हैं। बड़े बड़े दुश्मन उनके असर से ठंडे हो गए, और अल्लाह के फजल के साथ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मद्दाह बन गया अगर बैत ना भी की। इन कुतुब को पढ़ने के बाद अज़ीमुश्शान आरा हैं जो पुराने बुज़ुर्ग उलमा ने भी दी और आम पढ़े लिखे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तबके ने भी दी। किसी वक्त इंशाअल्लाह मैं वो भी आपके सामने रखूँगा। इस वक्त सर दस्त यही मुख्तसर तारफ़ काफ़ी है कि गलत है, जुल्म है कि हम इसलिए आपकी किताबें बंद किए बैठे हैं कि इश्तियाल न पैदा हो। अमदन इश्तियाल की सारी बातें अब फैलाते चले जा रहे हैं,
सारे मुल्क में वो आग लगाने की खुली इजाज़त है। और अगर कभी आग ठंडी हो रही हो तो आपके ऐसे वज़राए मज़हब हैं जिन्होंने खुलकर मजमे आम में ऐलान किए हैं, टेलीविज़न पर ये ऐलान दोहराए गए हैं कि हमने तो सारे कवानीन बना दिए थे अहमदियों को ज़क करने के लिए और अहमदियों की ज़िंदगियाँ हराम करने के लिए। तुम अजीब लोग हो, उभरते ही नहीं, फ़ायदा ही नहीं उठा रहा है। और अभी ये दुनिया को कहा जा रहा है कि हुकूमत की पॉलिसी तो नहीं है। ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है तो ये मुकदमे फ़ौजदारी कौन दायर करता है? क्या दुनिया को इल्म नहीं कि कानून क्या होता है? फ़ौजदारी मुकदमे सारे के सारे हुकूमत के नुमाइंदे दाखिल करते हैं। किसी सिविलियन को ये हक़ ही नहीं है कि फ़ौजदारी मुकदमा दायर करे। अभी हाल ही में अल-फज़ल के ख़िलाफ़ और दूसरे रसायल के ख़िलाफ़, उनके एडिटरों के ख़िलाफ़ जो मुकदमे हुए हैं, हमारे बाद एडिटरों को बेचारों को कई दिन मुसलसल अदालतों के फेरे लगाने पड़ते हैं और फिर कभी सफ़र करके कराची जाकर जवाबदेही करनी पड़ती है कि सिंध के एक मौलवी ने दायर कर दिया मुकदमा। हुकूमत इनको बातों को कबूल करे तो मुकदमे बनते हैं, उसके बगैर कैसे मुकदमे बन सकते हैं? और रवैया हुकूमत का ये है कि अहमदी अपील कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में, और बाद मज़लूम कैद व बंद की सूबतें उठा रहे हैं 2-2, 3-3 साल से। वो कहते हैं झूठा मुकदमा है, हमने ये बात नहीं कही, हम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक़ सादिक़ हैं, तुम क्यों हम पर जुल्म करते हो? और नज़रसानी करो इस फ़ैसले पर। और फ़ैसले में हुकूमत पंजाब के नुमाइंदा अटॉर्नी जनरल पंजाब के, वो कहते हैं ये जो हो रहा है ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा होना चाहिए। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन मुकदमों को 298 की बजाय 295 में तब्दील किया जाए। ये होते कौन है कहने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह? जब ये कहते हैं तो दिल में किसी और का नाम लेते हैं। जिसे अपने दिल की खबर नहीं, वो लोगों के दिलों में झांक रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो नबूवत के दावे पे आग लग गई है, खुदाई का दावा क्यों करते हो? खुदा बने बैठे हो, कहते हो हम जानते हैं, दिल में किसी और का नाम लेते हैं, इसलिए हम जानते हैं, इसलिए सजा दो। और अदालत रिमार्क्स कसती है कि हाँ इसमें बड़ा वजन है, मामूली बात नहीं की गई। ये हुकूमत इस तरह अपने मुतालबे करती है। सिंध का ये हाल है, वहाँ हाई कोर्ट ने अहमदियों को बरी किया और हुकूमत सिंध ने उसके ख़िलाफ़ अपील की है सुप्रीम कोर्ट में। ये कौन मौलवी थे जिन्होंने अपील की थी? ये हुकूमत के नुमाइंदे थे, अटॉर्नी जनरल। हुकूमत के ऐन इशारों पर चलने वाली चीज़ है। मजाल है हुकूमत के सिवा अपनी तरफ से कोई बात दाखिल कर सके? बस इसलिए जो कुछ भी हो रहा है इसमें हुकूमत की बदनसीबी दाखिल है। मैं ये बातें खोल रहा हूँ इसलिए कि मुझे इल्म है कि अहले हुकूमत को अक्सर को पता ही नहीं कि तारीख़ इस्लाम है क्या। नाम कुरान का लेते हैं, हदीस का लेते हैं, उलमा के कब्रों पर जाकर सर भी टेकते होंगे, हार तो ज़रूर पहनाते हैं, मगर पता नहीं कि वो कौन लोग थे। इसलिए उन बुज़ुर्गों का आज मैंने तारुफ़ करवा दिया कि ये भी देख लेना, जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज करने का तसव्वुर ख़याल दिल में पैदा हो तो खुदा का खौफ करना, अल्लाह के नामों उसके रंगों का ख्याल करना, हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात हसना पर ध्यान करना और आपके ग़ुलामों का हाल देखना कि कैसे कैसे रंगों में रंगीन थे। अल्लाह ताला आपको अक़ल दे और समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।